ठीक है, thank you, thank you. So we will start today's session with some brief introduction of measurement, track measurements, as you have requested in your some of the previous sessions. And then we will go on to study, to deal with the case study of the major development, how the accident inquiry is done. And first of all, I apologize for getting late. Actually, I'm out of station, so I lost track of my lecture series. So yeah, I got late. So we'll start right away. This you have already studied. I will skip these slides, which I already moved to you. What is an accident, railway act, and everything. How the ये आपको श्रीनिवास ने पढ़ाया होगा? Can somebody confirm this rail wheel interaction and Ralph's formula, flight force, wheel load? Has this been taught? कैसे, how the development occurs, how what are the forces involved in railway development, that is shown in this figure. There is a Q is normally by Q we denote the wheel load. Wheel load has to be quite high as possible. जैसे loaded trains में development की possibility are less, whereas empty are more prone to development. As and when wheel load decreases, possibility for development increases. Flange force is wide. Flange force, flange force is mainly denoted by Y, which is shown here. This is a horizontal force acting from flange to the rail area, and this is normally caused by many things. एक तो रेल की डायनेमिक्स, रेल सीसॉ मूव करता है, that at the curve due to centrifugal force. Then there is one more thing which is called angle of attack, which you can see from there, the angle at which rail flange interacts with the wheel flange interacts with the rail flange. These are the three things which are most important while dealing with any development, that what was the wheel load at that time and what was the. आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, तो somebody can give feedback to me, so I will skip this. सर ये कवर हो चुका है सर, ये कवर हो चुका उसने है, पढ़ाया है सर। इसीलिए I will skip this. Okay. This sudden development and this also you are taken. Coming to some of the part which are required, my accident mechanism skip कर रहा हूँ, and I'm coming directly to how the evidence is recorded at the site and how the track measurements are done. The first thing in recording the evidence is preparing the right type of site sketch. Normally site sketch भी हम लोग अपने हाथ से खींच लेते हैं और उसमें many important things are missing. And whenever there is a CRS inquiry, the CRS halts up the railway officers and supervisors for not preparing the site sketch correctly. And even when there is a departmental inquiry, then also preparation of correct site sketch is of utmost importance. Most of you attending the class are mechanical officers, I presume. Mechanical officers and supervisors, and and the many sites mechanical officers and supervisors are at the receiving end, defending their point of view. क्योंकि लड़ाई मेनली there are three departments जिस पर शक की सुई रहती है. The needle of suspicion lies on only the three departments, that engineering department, S&T, and mechanical. So, to defend yourself fully, you should have the correct site sketch and correct track measurement. ये इसका इम्पोर्टेंस, अगर आपने ट्रैक मेजरमेंट सही नहीं कराया और साइट स्केच सही नहीं बनाया, तो आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगे. तो साइट स्केच कैसे बनाते हैं? सही साइट स्केच कैसे बनाना है, ये कहाँ दिया हुआ है? ये
पैरा 707 पीवे मैनुअल में अगर आप जाएंगे तो उसके पैरा 707 में साइट स्केच बनाने का प्रोसीजर दिया हुआ है, एंड सेम हैज बीन एक्सट्रैक्टेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन एक्सीडेंट मैनुअल ऑफ ऑल द जोनल रेलवेज। सो अगर आपको कोई कहता है कि जो साइट स्केच आप हमें बनाने को कह रहे हैं वो ऐसा तो नहीं बनाना होता, हम तो ऐसा नहीं बनाते, तो यू कैन रिफर टू दिस पैरा ऑफ पीवे मैनुअल। इसमें क्या दिया हुआ है वो मैं बताना चाहूंगा। पहली चीज है ट्रेन नंबर, डेट एंड किलोमीटर ऑफ साइट ऑफ एक्सीडेंट शुड बी फर्निश्ड वेरी क्लियरली। नॉर्थ पॉइंट शुड बी मेंशन। कई बार साइट स्केच बन के आ जाता है और उसमें डायरेक्शंस का कंफ्यूजन होता है इंक्वायरी करते समय, इसलिए साइट स्केच में नॉर्थ पॉइंट मेंशन होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और पिछले और अगले स्टेशन का, जो प्रीसीडिंग स्टेशन था और अगला स्टेशन था, उनके नाम मेंशन होने चाहिए। और इस साइट स्केच को लगभग 300 मीटर बिहाइंड द पॉइंट ऑफ माउंट एंड ऑलमोस्ट एन इक्वल डिस्टेंस इन द फ्रंट, मतलब जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उससे 300 मीटर पीछे तक और 300 मीटर आगे तक का एरिया के डिटेल्स कवर होने चाहिए। नॉर्मली जो आपका साइट स्केच होता है वो 30-40 मीटर पीछे तक का कवर करता है, आगे का कुछ भी नहीं कवर करता। आप लोगों से कितने लोगों ने साइट, कैन समबडी, कोई हमें बता सकता है जिसमें साइट अटेंड की हो और साइट स्केच में कितनी डिस्टेंस कवर थी? आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तभी क्लास अच्छा होगा, अदर क्योंकि ये दिस इज अ टाइप ऑफ क्लास इन व्हिच आई एम गोइंग टू टीच मेनी प्रैक्टिकल थिंग्स, और अगर आप लोग उसमें इंटरेक्ट करेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। अदरवाइज आप लोग बैठे बैठे चले जाएंगे, मैं बता दूंगा और आप लोग कुछ सीखेंगे नहीं। तो प्लीज इंटरेक्ट। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये आपने साइट स्केच कितने लोगों ने बनाया है? कोई आदमी है जिसने साइट स्केच बनाया है? सर हम लोग हाँ तो क्षितिज, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हेलो, has somebody been involved in the preparation of site sketch? नो सर। ये नहीं एसएससी सर, आईआईटी वगैरह है इसमें, तो क्या आप लोगों ने साइट स्केच कभी नहीं बनाया? मैं सर हम धर्मेंद्र लोग बोलना साइट चाहता हूँ। स्केच हम लोग का जो है सर, आई एम पीके शाह सर। हाँ बोलिए साहब। शाह, हेलो सर। हाँ बोलिए साहब, सुन रहा हूँ। हाँ बोला हूँ सर, हम लोग जैसे ड्रिलमेंट साइट में जाते हैं तो हम लोग का जो साइट स्केच जो बनता है वो पीडब्ल्यूआई बनाता है, ठीक है ना, उसमें मतलब सबका कंसर्न लेके बनाता है। तो उसीलिए हम लोग ड्रिलमेंट साइट में जाने से बाकी काम में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, ड्रिलमेंट एंड अदर्स वर्क्स में। आप चाहे जहां व्यस्त हो जाएं, लेकिन मेरा ये कहना है कि एक सुपरवाइजर हमेशा साइट स्केच बनाने वाली टीम के साथ लगाया जाता है, जो कि पॉइंट ऑफ माउंट, पॉइंट ऑफ ड्रॉप को मार्क करता है। उसको ये बात लौट के बताइए कि साइट स्केच में हमको बताया ये चीजें होनी चाहिए और ये पीवे मैनुअल में लिखी है, क्योंकि इन चीजों को जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्किप करता है तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि एक्सीडेंट इंक्वायरी को सही रास्ते से थोड़ा सा भटका देना। वो कहेगा इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत है या नहीं है, that will be decided by the inquiry committee. You have to record the evidences as specified in the manual. मैनुअल में पढ़ लीजिए, ये होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या नहीं होने से क्या दिक्कत होती है। देखिए, एक ये स्टैंडर्ड साइट स्केच है जो कि इसमें दिया हुआ है, इसको इससे आप ये देख सकते हैं स्टैंडर्ड से ऐसा साइट स्केच हमेशा होना चाहिए। अगर साइट स्केच ऐसा नहीं है तो आपके एक्सीडेंट इंक्वायरी में सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। अब इस साइट स्केच में देखिए क्या क्या खास चीजें हैं। देखिए ये ऊपर जो है, ऊपर ये सारे कोचेज का फॉर्मेशन दिया हुआ है या वैगन्स का। सारे वैगन नॉर्मली क्या करते हैं, 2 ट्यूबवेल वैगन है तो उन्हीं को बना देते हैं और पीछे के डब्बे नहीं बनाते हैं। तो इसमें से ये पता चलता है कि कुल कितने लोड की गाड़ी थी, कैसा ज्योमेट्रिकल शेप बना। जैसे ज्योमेट्रिकल शेप है, दिस इज अ शेप ऑफ वन साइडेड डिवेलमेंट, जिससे लगता है या तो कर्व पे डिवेलमेंट हुआ है या रेल बकलिंग हो तब भी ऐसा डिवेलमेंट हो सकता है। ज्योमेट्री ऑल्सो टेल्स गिव्स इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट द टाइप ऑफ डिवेलमेंट। तो अगर आप इसमें देखेंगे, इसमें सारे वैगन दिखाए गए हैं, सारे 5 कोचेज इंटैक्ट हैं, आगे के 5 कोचेज पीछे के इंटैक्ट हैं और बीच के सारे कोचेज डिवेल हुए हैं। दिस इज वन थिंग दैट द होल
ट्रेन लेंथ शुड बी शोन। फिर आप इसमें देखेंगे, अगर ये एक नीचे एक नक्शा और बना हुआ है जो कि फुल ट्रैक लेंथ को दिखाता है कि आगे कहाँ पर लीड रेल था, कहाँ SWR था, कहाँ। आप लोग ये जानते हो कि थोड़ा रेल ज्योमेट्री के बारे में आप लोग जानकारी रखिए। लॉन्ग वेल्डेड रेल होती है, उनके ज्वाइंट्स होते हैं, एसीजे होते हैं, स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट्स होते हैं। आप लोगों में से कोई स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट के बारे में जानता है? हर स्टेशन के आगे पीछे एसीजे होते हैं। कैन somebody टेल व्हाट इज एसीजे? कोई बता सकता है एसीजे क्या होता है? आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैकेनिकल सुपरवाइजर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जहां इंजीनियरिंग का कुछ चीज आए वहां आके बंद कर लें। अगर आप ART इंचार्ज हैं तो आप हर दिन कम से कम 1 घंटे आप रेलवे ट्रैक के बारे में पढ़िए। और एसीजे बहुत बेसिक चीज है। किसी भी स्टेशन पे जाएंगे तो स्टेशन के बाहर तरफ एक स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है, जहाँ पे लॉन्ग वेल्डेड रेल आके मिलती हैं और वहां पे एक्सपेंशन ज्वाइंट लगाया जाता है। वो इस प्रकार का होता है कि रेल को फैलने की जगह देता है। अगर उसमें गैप कम हो गया तो बकलिंग हो जाएगी। तो कहाँ पर एसीजे था, कहाँ एसीजे की लोकेशन दिखाई जानी चाहिए, लेवल क्रॉसिंग की लोकेशन दिखाई जानी चाहिए। और कंप्लीट जो मैं बतला रहा हूँ, ये देखिए स्टैंडर्ड स्केच पीवे मैनुअल में दिया हुआ है, उसमें भी दिया रहता है। कहीं पर अगर कर्व पड़ता है तो कर्व का नंबर, कर्व की डिग्री, कर्व का रेडियस, कर्व का कैंट एंड ट्रांजिशन लेंथ, ये सारी चीज दिखाई जानी चाहिए। आप लोगों में से कोई ये जानता है कैंट क्या होता है? आप लोगों की रेलवे में इतनी सर्विस हो गई है, आप लोग कैंट के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या? Hello, participants. हाँ, Hello, participants, please respond. Can't railway can't के बारे में somebody knows, if somebody knows then please say so. नहीं मालूम है तो आप लोग बोलिए कि नहीं मालूम है, मैं नहीं आता है। देखिए ऐसा है कि आई प्रिज्यूम दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद द सुपरवाइजर्स हु हैड पुट इन सम इयर्स ऑफ सर्विस इन द रेलवेज। इफ यू, अगर आप सभी के सभी लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, इंडक्शन बेस्ड ट्रेनिंग है, तो हमको बता दीजिए, तो मैं उस हिसाब से बताऊंगा। नो सर। कैंट में शायद कर्विंग ट्रैक पे एक रेल को जो राइट वाली होती है, कर्व राइट की तरफ है तो उसे ऊपर रखा जाता है और लेफ्ट वाली को नीचे है सर। वेरी गुड अभिजीत, एटलीस्ट यू हैव सम आइडिया। मेरा ये कहना है कि इवन इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया, देखो एक मैंने कोट पढ़ा था, वन इम्पॉर्टेंट कोट, ए मैन हु आस्क ए क्वेश्चन। अगर मतलब आप ये अपने मन में समझते हैं क्वेश्चन पूछने से मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मुझे नहीं आता, तो उसके लिए कहा था, सम वाइज पर्सन हैज सेड, ए मैन हु आस्क द क्वेश्चन इज ए फूल ओनली फॉर वंस, बट ए मैन हु डजंट आस्क क्वेश्चन ही इज ए फूल फॉर द लाइफ। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, डोंट रिमेन फूल फॉर द लाइफ। हम लोग यहाँ फूल नहीं, हम लोग तो आपस में क्वेश्चन करने आए। मैं भी आपसे सीखूंगा, आप भी हमसे सीखें, इसलिए खूब इंटरेक्ट करिए। कुछ भी आप गलत सलत बोलेंगे, मुझे लगेगा बोले तो आप। तो कैंट, कैंट जो होता है, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कैंट क्या होता है, अभी समझाता हूँ। देखिए कैंट भी लिखा गया है, कोई भी कर्व होगा तो उसमें कैंट लिखा होगा। कैंट दो प्रकार के होते हैं, कैंट एक्सेस एंड कैंट डेफिशिएंसी। कैंट का मैं एक सिंपल से उदाहरण आपको समझाता हूँ। आप सब लोगों ने कभी ना कभी कार, स्कूटर उसमें ट्रेवल किया होगा, और किसी कर्व पे जब गाड़ी मुड़ती है तो सडनली यू एक्सपीरियंस कि आपको बाहर की तरफ कोई चीज, कोई ताकत फेंक रही है। स- वो बाहर की तरफ फेंकने वाली ताकत क्या होती है? इंजीनियरिंग में आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इट इज ए सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच थ्रोज यू आउटसाइड इन केस ऑफ ए कर्व। तो उस इफेक्ट को, वो बाहर फेंकने वाले इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए अगर उतना ही फोर्स अंदर की तरफ लगा दिया जाए, तो अंदर की तरफ जब फोर्स लगेगा तो वो उसको बाहर फेंकने को मिनिमाइज कर देगा। यही इफेक्ट अगर व्हील में आएगा, व्हील बाहर की तरफ फेंकने को होगा, तो उसके जो मैंने अभी आपको बताया था हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट इज कॉल्ड फ्लैंज फोर्स, फ्लैंज फोर्स विल इंक्रीज एक्सेसिवली। और ये आपको पिछली क्लासेज में पढ़ाया गया होगा कि वाई बाई क्यू जब एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, 1.2 1.3 से ज्यादा हो जाता है, तब डिवेलमेंट हो जाता है, व्हील माउंट कर जाएगा। तो
अगर हम एक फोर्स अंदर की तरफ लगाते तो आगे वाला फोर्स कम हो जाएगा, जो लग रहा है दैट इज ए नेचुरल प्रॉपर्टी, वो तो मैकेनिक्स का फंडामेंटल लॉ है, तो वो तो फोर्स लगेगा ही। उसको काउंटर करने के लिए हम अपोजिट जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला होता है mv² / जो बाहर की तरफ मुझे कैसे लिखा जा सकेगा आई डोंट नो। तो जो बाहर की तरफ नोटेट, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड mv²/r। ये फार्मूला होता है वेयर m इज द मास ऑफ द व्हीकल। मुझसे mv²/r फार्मूला होता है वेयर m इज द मास ऑफ द व्हीकल, v इज द स्पीड एंड r इज द रेडियस। m and r are fixed based on the weight of the train. M is the weight of the train and r is the radius of the curve. So v varies. अगर कोई मालगाड़ी जा रही है तो उसके लिए स्पीड v कम है, और अगर कोई दूसरी बड़ी राजधानी या शताब्दी जा रही है उसके लिए v इज वेरी हाई। सो इसलिए हर ट्रेन के लिए बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिफर करता है। लेकिन आपने जो सुपर एलिवेशन बनाया है दैट सुपर एलिवेशन रिमेन सेम फॉर ऑल द ट्रेन, तो किसी ट्रेन के लिए काउंटर फोर्स कम होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, और किसी ट्रेन के लिए काउंटर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होगा। जब काउंटर फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा होता है तो उस केस में जितना डिफरेंस होता है दैट एक्सप्रेस्ड दैट इज कॉल्ड कैंट डिफिशियंसी, और जो कम होता है तो दैट इज कॉल्ड कैंट एक्सेस। तो यहाँ कैंट दिया हुआ है 140 मीटर, ट्रांजिशन लेंथ इज ऑल्सो गिवन। ये आप सारी चीज अभी मैं कैंट आपको और डिस्कस करूंगा। ये चारों चीजें आपकी हमेशा हर कर्व में पेंट से लिखी रहती हैं, और इनको नक्शे में लिख लेना। ये आप लोग नोट करके आज रख लीजिए कि अगर इसको आप लिखेंगे तो एक्सीडेंट इंक्वायरी में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिलेंगे। इफ यू नोट डाउन द कैंट एंड ट्रांजिशन लेंथ एंड वेरीफाई दैट विद द फिजिकल थिंग, देन दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू ड्यूरिंग द एक्सीडेंट इंक्वायरी। देखिए ये ट्रैक जो बना हुआ है इस नक्शे में, इसमें ये लेफ्ट रेल बनी हुई है, और यहाँ पे एक आप लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है तो इस साइन का मतलब समझते होंगे कि दिस इज वेरी लॉन्ग विच कैन नॉट बी शोन इन द स्केच। तो यहाँ से ब्रेक दिखाया गया है कि बाकी स्ट्रक्चर ऐसा ही है। इतनी दूर पर लेवल क्रॉसिंग है, किलोमीटर लिखा हुआ है, और इस तरफ की लेवल क्रॉसिंग का भी किलोमीटर कहीं लिखा होगा। ये ट्रांजिशन पॉइंट की लोकेशन दी हुई है। ट्रांजिशन पॉइंट मतलब जहां से कर्व स्टार्ट होता है, the point from which the curve starts is called the transition point. Location of that point should be carefully noted to analyze the accident in detail. Now in another box, track के details लिखे हुए हैं। Track is 50R, 3 rail SWR, CST 9 sleeper। CST sleeper अब होते नहीं है। Gradient 1/150, curve is 3 degree, ballast 150। क्या होना चाहिए ये लिखा। These are not the actual readings. These are the standard readings which are specified for that particular length of track. This should be written, नहीं तो बाद में आपको स्टैंडर्ड कहीं मिलेगा नहीं, और आप जो मेजर करेंगे उसको कहीं से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। मैनुअल से जब कंपेयर करेंगे तो पीडब्ल्यूआई कह देगा कि दिस इज द यार्ड। आप व्हाई आर यू कंपेयरिंग विद द मैनुअल, यार्ड में अलग है, फिर कोई कागज लाएगा कोई कागज लाएगा, एंड यू विल बी thoroughly confused। इसलिए यहाँ पे लिखा जाना चाहिए कर्व 3 डिग्री ट्रांजिशन, बैलास्ट 150 mm क्लीन बैलास्ट होना चाहिए बिलो स्लीपर, एंड 250 mm टोटल। रेनफॉल वगैरह फॉर्मेशन स्टेबल, अगर कहीं मिट्टी गड़बड़ है कहीं की तो वो भी लिखा जाएगा। दीज आर द ट्रेन नंबर, डेट ऑफ एक्सीडेंट, टाइम एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पर कोचेज के फर्दर डिटेल्स, कोचेज के व्हील वाइज डिटेल दिया गया है, किस कोच के व्हील कहाँ थे। जैसे दिस 16007, दिस इज वैकेंट, दिस इज डिवेल, दिस इज ऑल्सो डिवेल। ये सारी चीजें दी हुई हैं। हम फिर से आते हैं पुरानी स्लाइड पे। इट शुड ऑल्सो इंडिकेट the position of all the derailed vehicles and marks left by them. Carefully note this point. Marks left by them, marks left by the coach wheels on the sleepers, rails and ballast are very important. मैं आपको जो केस स्टडी पढ़ाऊंगा उसमें
70 persons की डेथ हुई थी. CCRS conducted the inquiry and the whole inquiry was concentrated on the marks left by the wheels on the sleeper rails and ballast. हम लोग नॉर्मली इसको छोड़ देते हैं, अगर नोट भी करते हैं मार्क्स तो रेल टॉप पर नोट करते हैं, जबकि हमको मार्क्स स्लीपर पे, बैलास्ट पे, हर जहां जहां मार्क्स है मार्क्स की पोजीशन नोट करनी चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफ में वो मार्क्स दिखते नहीं है क्लियरली. You cannot clearly point out the marks on the photograph, so you have to note down in the sketch. You should also note down the position of the point of mount with position of rail joint on either side. जहां भी रेल ज्वाइन हुई है उसकी पोजीशन आपको लिखनी चाहिए, क्योंकि वहां से रेल ज्योमेट्री में एक मेजर चेंज आता है. जब भी कोई पॉइंट होता है तो पॉइंट में भी रेल जुड़ी होती है. आप लोगों को मालूम है कि पॉइंट में एक ज्वाइंट होता है. Whenever you see any point and crossing, so there are two rails in that point of crossing. One is called lead rail and another is called tongue rail. जो टंग रेल होती है वो टंग की तरह आगे पीछे मूव करती है. इट मूव्स एंड लीड रेल रिमेन्स फिक्स्ड. तो लीड रेल और टंग रेल के बीच में एक वेल्डिंग ज्वाइंट होता है. कई बार उस वेल्डिंग ज्वाइंट के फेल्योर की वजह से होता है डिवेलमेंट, लेकिन हमारे मैकेनिकल सुपरवाइजर्स उसके बारे में जानते नहीं, इसलिए उसको डिवेलमेंट में स्केच में इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं. उसकी लोकेशन इंजीनियरिंग वाला उसके ठीक पहले मेजरमेंट करेगा और छोड़ देगा. अब जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग वाला कोई गलत काम कर रहा. इंजीनियरिंग सुपरवाइजर इज ऑल्सो जस्टिफाइड इन डिफेंडिंग हिज डिपार्टमेंट. वो भी अपने डिपार्टमेंट को डिफेंड कर रहा, आप भी करिए, लेकिन आपको नॉलेज होगी तभी डिफेंड कर पाएंगे. You should also note down the location of point of drop, location of pair of wheels of the first derailed vehicle, and it should also indicate the position in which every displaced vehicle and detachable component. अगर कोई स्प्रिंग, कोई टुकड़ा, कोई लोहा कुछ मिला है तो उसकी पोजीशन नोट करनी चाहिए. उस पर नंबर डाल देना चाहिए कि ये चीज यहाँ मिली थी इतने किलोमीटर पे. मैं आपको एक एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगा. एक बार काफी पहले की बात है, इट वॉज वे बैक इन 2000. There was a development in the meter gauge section. मैं वहां पर गया तो वहां पे डिवेलपमेंट में पॉइंट ऑफ माउंट के पहले ही स्प्रिंग्स पड़ी थी ढेर सारी. द इंजीनियरिंग सीनियर डीएन accompanying me immediately told that this development happened due to this location of springs, क्योंकि स्प्रिंग पहले निकल गई, फिर गाड़ी गिर गई. परफेक्टली राइट. आप क्या करेंगे? आप लोगों ने कोई ऐसी साइट देखी है जिसमें कि स्प्रिंग्स पहले निकल गई हो और फिर गाड़ी डिवेल हुई हो? Have you anyone of you have encountered such site? सर मैं आपको बताता हूं उसमें मैंने क्या किया. आई हैव ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, और मैंने उससे कहा कि आप इन स्प्रिंग्स पे नंबर डाल, यू नंबर दीजिए स्प्रिंग्स एंड मार्क द लोकेशन, और साइट स्केच पर लिख दो, और फिर हम लोग इसको वी विल डिस्कस इट इन द इंक्वायरी कमेटी. जब इंक्वायरी में आए मैंने उन स्प्रिंग्स को रिलेट करना शुरू किया, बिकॉज आई हैव सीन दिस. तो मैंने देखा, उसमें मैंने देख लिया था तभी कि उसने क्या किया था, इनर स्प्रिंग्स पहले थी और आउटर स्प्रिंग्स बाद में थी. बाई इट इज नॉट पॉसिबल कि कभी ये संभव है. आप लोग सोच सकते हैं कि इनर स्प्रिंग पहले गिर जाए और आउटर स्प्रिंग इंटैक्ट रहे? इज इट पॉसिबल? नो सर. इट इज नॉट पॉसिबल. तो मैंने उससे कहा इट इज नॉट पॉसिबल, तो उसने कहा सर ये तो मिली थी ऐसे. हमने कहा तुम बता दो. हमने फिर उसको पूरा स्केच दिखाया, बताया. फिर अंत में ये प्रूफ हो गया कि वो स्प्रिंग्स पीडब्ल्यूआई ने हम लोगों के पहुंचने के पहले उठा के पीछे प्लेस कर दी थी, लेकिन उसको ज्ञान नहीं था कि अगर वो आउटर स्प्रिंग पीछे रखता, इनर स्प्रिंग आगे रखता, तो हम उसको नहीं पकड़ पाते. लेकिन उसको ज्ञान नहीं था, उसने एक साथ कर दी थी, स्प्रिंग्स लगा दी थी. तो बाद में वो डेवलपमेंट इंजीनियरिंग पर फिक्स हुआ. तो मेरा ये कहना है कि आपको हर कंपोनेंट का लोकेशन एकदम सही सही नोट करना चाहिए. अभी मैं आपको जो केस स्टडी बताऊंगा उसमें भी ऐसा ही है. In case of accidents within station limits, sufficient details about the station layout should be shown in order to fully explain the movement of affected train. In this also, I will give you one example. एक one container wagon was derailed somewhere near शिकोहाबाद के आसपास कहीं डिवेल हुआ था इलाहाबाद डिवीजन में.
मैं तो उसमें क्या हुआ, हमने कहा कि ठीक है आप स्टेशन की पूरी टोपोग्राफी, उसने कहा लूप लाइन में डिवेल हुआ, हमने कहा स्टेशन का स्केच लाइए और उस समय जो ट्रेनें खड़ी थी वो लाइए। तो मैंने देखा कि फर्स्ट लूप line was vacant. Even then, container wagon was being taken in the second loop line. अब what happened, container wagon के बारे में आप लोग जानते होंगे, उसमें somebody is saying something. One of the participants has requested that I should little bit of Hindi he can understand, but English, so I will switch over to English. So there was a Shikawabad station in Allahabad division, and but container wagon has derailed. When I asked for the sketch, I observed that that container wagon has got derailed in the second loop line, whereas the first loop line was vacant. And when, if you have seen the container wagon, you may be knowing that it is of 4 units in a set, and there is a fixed type, semi-fixed type coupling between the 4 wagons. So negotiability of the curve is poor in container wagon, and an advisory was already issued from RDSO that as far as possible, container wagon should not be taken second loop line, because उसने ये लिखा नहीं था कि negotiability is poor, and instruction was given to the divisions to notify from their level that these are the loop lines which are banned for the container wagon. Most of the zonal railways and divisions failed to react on that letter, but I took cognizance of that letter and I asked that if the first loop line was vacant, why were you taking the container wagon in second loop line? And this is not correct. So ultimately that derailment got fixed on the failure of traffic department, mismanagement by traffic department. तो मेरा ये कहना है कि आपको एक्सीडेंट को स्टेशन का पूरा लेआउट हमेशा लिखना चाहिए, स्टेशन की टोपोग्राफी लिखनी चाहिए। टोपोग्राफी मतलब स्टेशन हाइट पर है, स्टेशन डाउन है। स्टेशन की टोपोग्राफी बनाने से बहुत फायदा आपको ये होता है कि एम्बैंकमेंट पे अगर डिवेलपमेंट हुआ, बगल में मान लीजिए देयर इज ए पॉन्ड, एक बगल में मान लीजिए बड़ा सा तालाब है, देयर इज ए पॉन्ड एंड देयर इज चांसेस ऑफ वाटर ingress in the track structure and soil getting weak, then you can conclude from that. ऐसे भी एक्सीडेंट मैंने देखे हैं जिसमें बगल में बहुत बड़ा तालाब था और मिट्टी इतनी खराब हो गई थी, soil was so weak that formation was getting destabilized even when operating 140-ton crane. So there was all chances of track geometry getting disturbed during heavy rain, and if you are not showing that topography in the sketch, then then it is very difficult to fix up the find out the root cause of the derailment. तो ये करना चाहिए. Next is distance from of the site of accident from a permanent structure. परमानेंट स्ट्रक्चर से साइट ऑफ एक्सीडेंट की डिस्टेंस इसलिए दिखाई जाती है जिससे कि बाद में कोई मैनिपुलेशन न हो सके एक्सीडेंट साइट का, नहीं दिस वाज दिस, इसलिए एक परमानेंट स्ट्रक्चर दिखाया जाता है. दिस इज स्पेसिफाइड इन पीवे मैनुअल इटसेल्फ एंड डिस्टेंस शुड बी इंडिकेटेड टू शो द एक्सटेंट ऑफ डिस्टर्बेंस. कभी कभी 3 एट टाइम्स देयर इज ए 3 or 4 किलोमीटर ड्रैगिंग, तो पूरा 3-4 किलोमीटर स्केच में दिखाया जाना चाहिए, उससे पता चलेगा कि कहां पर हिटिंग हुई. एनी मार्क्स ऑन स्लीपर और ट्रैक फिटिंग शुड बी क्लियरली, ये हम लोग अक्सर ये चीज मिस की जाती है, मार्क्स स्लीपर और ट्रैक फिटिंग पे दिखाए जाने चाहिए. ब्रोकेन पार्ट्स दिखाए जाने चाहिए. इफ देयर इज एनी हिटिंग मार्क ऑन द ब्रोकेन पार्ट दैट शुड आल्सो बी शोन. And if required, more than one sketch can also be attached. That one sketch can be of the actual derailment portion, and another sketch can be of the yard or station limit. एक sketch आप ऐसा दिखा सकते हैं जिसमें खाली wheel marks हो, उसका अलग से sketch बना लीजिए. आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अगर आप अपने को डिफेंड करना चाहते हैं, then you should focus on making the correct sketch. और ये जो मैं दे रहा हूँ ये स्लाइड में दे दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा. दिस इज ऑल्सो गिवन इन द पीवे मैनुअल. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पीवे मैनुअल एंड रेफर. आई शुड ऑल्सो रिक्वेस्ट द कोर्स डायरेक्टर टू गिव द रिलेवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द पीवे मैनुअल टू द पार्टिसिपेंट्स सो दैट दे कैन. मैं आपको शाश्वत मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इनको शेयर कर दीजिएगा. ओके सर.
coming to the track measurement जो स्पेसिफाई किया गया है, दिस इज द प्रोफार्मा ट्रैक मेजरमेंट के जो प्रोफार्मा है, देखिए उसको अगर पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं पूरा। ये प्रोफार्मा 2-3 स्लाइड में आया है। डिटेल्स ऑफ सॉइल, बैलास्ट, विड्थ ऑफ शोल्डर्स, लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ माउंट, वेल फास्टनिंग। अब ये आता है प्रोफार्मा ट्रैक मेजरमेंट पार्ट बी। देखिए दो पार्ट है ट्रैक मेजरमेंट के। एक कहलाता है पार्ट ए, जिसमें ट्रैक ज्योमेट्री के बारे में सारे डिटेल भरे जाते हैं, और दूसरा है पार्ट बी, जिसमें एक्चुअल मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। अब हमारे साथ क्या होता है, नॉर्मली हम लोग पार्ट बी को तो थोड़ा बहुत भरते हैं और पार्ट ए को नहीं भरते हैं। जब झगड़ा करते हैं तो पार्ट ए में सब वो ओके करके लिख देता है। मैं चाहूंगा कि आप लोग 5 मिनट लगाए मेरे साथ और पार्ट ए को भी देखें। गिव मी जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो पार्ट ए में सबसे पहले होता है सॉइल। सॉइल क्यों लिखा जाता है? सॉइल में देखिए, अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है, इफ इट इज ए ब्लैक कॉटन सॉइल की होल्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती। और किस तरह की सॉइल है, इस पे ट्रैक की ज्योमेट्री का बहुत फर्क पड़ता है। ट्रैक ज्योमेट्री मेक इट डिस्टर्ब if soil is not of the correct type. So you should note the type of soil. Condition. Soil condition should be noted. During the rain, soil get very slushy, and the track formation track may get sink. ट्रैक जब सिंक होगा तो उस समय उसके there will be track geometry will be disturbed, and क्या बोलते हैं इसको, देखो जस्ट आई वन दिस क्रॉस लेवल में गेट डिस्टर्ब। दिस गेज तो आजकल गेज देयर नॉट मच वेरिएशन इन द गेज इज विद द कंक्रीट स्लीपर, बट दिस क्रॉस लेवल may get disturbed, and ट्विस्ट में भी देयर। अगर सॉइल गड़बड़ हो जाएगी, इफ देयर इज ए सॉइल इज स्लशी और वेट, देन देयर में बी ट्विस्ट आपको, और ट्विस्ट से डिवेलमेंट हो जाएगा। बट इफ यू डोंट डू द मेजरमेंट्स, इफ यू डोंट राइट दिस, देन यू कैन नॉट पिन पॉइंट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन टाइप ऑफ फॉर्मेशन, रेनफॉल, टाइप ऑफ बैलास्ट के भी डिटेल नोट करने चाहिए। बैलास्ट ड्रेनेज के डिटेल नोट करने चाहिए। आई विल टेल यू अबाउट वन एक्सीडेंट। मैंने आई हैव मतलब दिस इज नॉट समथिंग टू से with a I'm saying this with a heavy feeling in my heart, that I have attended about 300 plus accident sites and conducted and was involved in more than 100 इंक्वायरीज। सो मैं आपको हर तरीके के एक्सीडेंट का एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इसलिए आपको बतला रहा हूँ। ये वाला जो दिस पॉइंट इज ना ड्रेनेज, पॉइंट नंबर 8, इसको आप ध्यान से देखें। आई विल ट्राई टू एनोटेट दिस। ये जो पॉइंट है ड्रेनेज हैज टू बी नोटेड। व्हेन आई वाज ADRM in Allahabad division, then an accident took place in Manikpur station. It was an accident of a mail express train somewhere in 2017. ट्रेन गॉट डिवेल्ड और बहुत उसमें इंजरी हुई थी, शायद 1% डाइड आल्सो, एंड इट वाज उसमें हम लोगों ने जब एक्सीडेंट इंक्वायरी करना शुरू किया, बिफोर एक्सीडेंट इंक्वायरी, व्हेन आई रीच्ड टू द साइट ऑन द नेक्स्ट डे, द फर्स्ट डे आई वाज इन कंट्रोल, the next day I reached the site, I found that during the restoration, track was totally uprooted. So track was to be laid out fully new. नीचे से जो ट्रैक के नीचे से जो सॉइल निकलनी चाहिए थी, instead of soil it was totally mud. And engineering persons were digging very deep, but even at the depth up to 1 meter, only mud was coming out. So I asked them to examine the drainage, and it was found that drainage is normally made between the two lines,
दोनों जो लाइन जाती है पैरेलल, उनके बीच में एक देयर इज ए ड्रेन, एक नाली सी होती है, वो नाली बनी थी, बस उसके एंड पॉइंट नहीं कनेक्ट किए गए थे, तो दैट वाज वेस्ट, देयर वाज नो ड्रेनेज। और ये ड्रेनेज नहीं था पिछले 5-6 साल से। और अगल बगल जो पानी के प्लेटफॉर्म पर जो पानी के वो लगे हुए थे स्टॉल्स, उनके लिए भी कोई ड्रेनेज नहीं था, तो वो पानी बह के दैट वाटर फ्रॉम वाटर बूथ used to get drained in the track structure itself, and track was that soil was वो धीरे धीरे soil was getting slushy, total mud हो रहा था, and soil sink हो रही थी। उसी की वजह से इंजीनियरिंग ने उसमें परमानेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, बट पंक्चुअलिटी वाज नॉट गेटिंग मेंटेन्ड इन दैट सेक्शन। तो इंजीनियरिंग ने कुछ दिन पहले हटा लिया, अबाउट 2 days बैक दे वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन हटा लिया था। स्पीड रिस्ट्रिक्शन हटाने के बाद immediately when trains were passing over, track structure got disturbed and train got derailed. That was a CRS inquiry. उस CRS inquiry का अभी भी रिपोर्ट आया नहीं है, बहुत मतलब बहुत हेवीली डिलेड है, या हो सकता है आ गया हो, बट उसमें इट वाज ए क्लियर केस ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द ड्रेनेज, एंड दैट्स व्हाई ट्रैक स्ट्रक्चर वाज गेटिंग डिस्टर्ब्ड। टोटल एविडेंसेस थे, लेकिन हमारे सुपरवाइजर्स ने एक्सीडेंट साइट स्केच में उसको नहीं दिखाया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ड्रेनेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा, और बैलास्ट भी ध्यान दीजिएगा। बैलास्ट जो होता है, बैलास्ट का एक स्पेसिफिक साइज होता है, बैलास्ट का स्पेसिफिक साइज होता है, अगर बैलास्ट का साइज उससे छोटा हो गया तो कुशनिंग नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए बैलास्ट का साइज, बैलास्ट को 100 मीटर तक, 100 सेंटीमीटर तक बैलास्ट, 100 सेंटीमीटर बैलास्ट का एक साइज होता है। मैं उसका वो भूल रहा हूँ, अभी मैंने आपको दिखाया था, आई विल जस्ट refer back. ये यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 150 mm, 150 mm तक बैलास्ट क्लीन होना चाहिए एकदम। तो 150 mm तक आपको बैलास्ट थोड़ा सा निकाल कर देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। नॉर्मली ये प्रोफार्मा हम लोग भरते नहीं है, आप लोगों को मैं कहूंगा कि आपसे इंसिस्ट करिए कि इसको भरा जाए। देन विड्थ ऑफ शोल्डर्स, जो ट्रैक होता है, ट्रैक के बाहर आउटसाइड द ट्रैक also you see a shoulder like formation of the ballast, and that should be noted down. If shoulder is less, then the lateral thrust cannot be absorbed by the track lateral thrust कैसे absorb करेगा? Lateral thrust is absorbed only by the shoulder of the track. shoulder आप लोग समझ रहे, ट्रैक के साइड में ballast in both sides of the track, you have a shoulder like formation by the ballast, and that absorb the lateral forces. You should carefully measure the width of shoulders in the track. If there is no width of shoulder, then there is every chance of track getting shifted to one side, especially in the curves. Sleeper, condition of sleeper, type of sleeper, condition of sleeper. Sleeper बीच से टूटा नहीं होना चाहिए। स्लीपर अगर बीच से टूटे होते हैं, कंटिन्यूअसली 3 स्लीपर्स आर ब्रोकन फ्रॉम द मिडिल, देन दैट विल नॉट होल्ड द ट्रैक। दूसरा, स्लीपर में स्क्वायर और नॉट, स्लीपर शुड बी परफेक्टली पैरेलल। स्क्वायर और नॉट का मतलब है कि पैरेलल होना चाहिए स्लीपर। इफ स्लीपर इज नॉट पैरेलल, देन व्हाट डज इट इंडिकेट? अगर स्लीपर पैरेलल नहीं है तो यह दिखाता है कि वन साइड रेल, एक साइड की रेल में क्रीप हुआ है ज्यादा। वो एक साइड की रेल अगर क्रीप होगा, एक साइड की वन साइड रेल इज गेटिंग एक्सपेंडेड एंड अदर साइड रेल इज नॉट टू दैट एक्सटेंट, देन स्लीपर स्क्वायरनेस विल बी लॉस्ट, और वो ये दिखाता है कि रेल की ज्योमेट्री में गड़बड़ है। तो दिस शुड बी नोटेड डाउन। Sleeper density should be noted down. Adequate numbers of sleeper has been put or not. Then general remarks about cracks or fractures of fish plates. जो fish plate टूटी है, जो crack हुए हैं, that should also be noted down. Anti-sabotage measures like reverse job, welded rails, etc. वो तो ये तो अब इतना important नहीं है, ये सभी में होता ही है। Location of point of mount. Point of mount is on straight curve or transition. ये कॉलम नंबर 28 कभी भी नहीं भरा जाता है। कॉलम नंबर 28 मोस्टली सुपरवाइजर्स नहीं भरते हैं कि पीओएम कहाँ था लास्ट तक। दे कीप ऑन फाइटिंग दैट वेदर देयर वाज अ पॉइंट ऑफ माउंट और नॉट, एंड देन दे डू नॉट रिकॉर्ड।
बट यू शुड रिकॉर्ड कि पॉइंट ऑफ माउंट इज ऑन ए कर्व, जहां पर भी पॉइंट ऑफ माउंट है वहां पर कर्व था कि नहीं, और वहां ग्रेडियंट था कि नहीं। ग्रेडियंट अगर है और कर्व है, देन द इन्वेस्टिगेशन टोटली टेक्स ए डिफरेंट डायरेक्शन। नोट करना चाहिए लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ डिवेलपमेंट। फिर वही नोट करना है कि आपका जो डिवेलपमेंट पॉइंट था वो स्ट्रेट पर था, कर्व पे था कि ट्रांजिशन पे था। ट्रांजिशन को नॉर्मली हम लोग मान लेते हैं कि इट इज नॉट ए कर्व्ड पोजीशन। ट्रांजिशन आप लोग जानते हैं कि जब भी स्ट्रेट कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन जा रही है और उससे सडनली यू हैव टू टेक ऑफ ए कर्व, देन इफ यू स्टार्ट कर्व सडनली, देन जितनी भी ट्रेन जाएंगे उसमें सडनली फोर्स इंड्यूस होंगे एंड देयर इज ए चांस ऑफ डिवेलपमेंट। सो इफ यू हैव टू मेक ए 3-degree curve and you are going from a straight line, then first you will provide 0.3-degree curve, then 0.6-degree curve, then 0.9, slowly you will reach up to the 6-degree curve, and if proper transition is not provided, then there are chances of development। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कानपुर यार्ड में आई हैव सीन ए डेवलपमेंट जिसमें ट्रांजिशन नहीं प्रोवाइडेड था। और ट्रांजिशन नहीं प्रोवाइड होता, ये चीज ये किसी को पता नहीं चलती, आपको कभी भी नहीं पता चलेगा करेक्ट ट्रांजिशन इज नॉट प्रोवाइडेड। वो केवल तभी होगा जब आप यहाँ नोट करेंगे कि ट्रांजिशन कितना है होना चाहिए और कितना है, एंड यू विल डू द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ विच पैरामीटर। कोई बता सकता है मेजरिंग द ट्रांजिशन कौन सा पैरामीटर आप मेजर करते हैं ट्रैक पे? वर्साइन सर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र कुमार। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। वर्साइन मेजर करेंगे आप, वर्साइन धीरे धीरे वैरी होगा, उससे पता चलेगा कि ट्रांजिशन सही है या नहीं। अगर आपने इसको मेजर कर लिया, और ट्रांजिशन में बताऊं सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की गड़बड़ी इसी में होती है, क्योंकि ट्रांजिशन मेंटेन करने के लिए साइट पर जब ट्रैक ले करते हैं बहुत मेहनत लगती है। ट्रैक इतना स्ट्रेट लोहे का पीस, उसको धीमे धीमे घुमा के ट्रांजिशन मेंटेन करना, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए अक्सर ट्रांजिशन में गड़बड़ होता है। अगर आप उसको मेजरमेंट कराएंगे तो ही विल बी ऑन बैक फुट। बाकी तो ठीक है, फॉलिंग ग्रेड पे है, लेवल पे है, राइजिंग ग्रेड पे है, कहाँ पर है ये नोट करना। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेफ्ट और राइट कैसे नोट किया जाता है। हमेशा जान लीजिए कि ट्रेन यू स्टैंड विद योर in the direction of movement of the train, and your right is right, left is left। एक अक्सर ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसका सहारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लेता है और कहता है कि डेटा इन कॉलम 2 to 26 need not be collected when the defect is obviously and indisputably on account of sabotage or obstruction on track। तो आप कहिए जब कभी ऐसा है कि कहीं बम फट गया है या हॉट एक्सिल है सीधा सीधा, तो वो अलग बात है, और वरना आप ये सारे डेटा लिखवाइए। थर्ड पॉइंट भी बहुत डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कहते हैं कि केवल कॉलम नंबर 26 कहते हैं कि ओनली दोज marks on those components should be recorded which are not the after effect। जो आफ्टर इफेक्ट नहीं है, which are the which have been broken before the accident। मतलब कोई भी आपका अगर ट्रैक की फिश प्लेट टूटी है तो सारी फिश प्लेट को एवरीथिंग, एवरी वेल्डिंग जॉइंट, एवरीथिंग दे विल टेक, दे विल से दैट दिस इज द आफ्टर इफेक्ट। आपको साइट पर आर्ग्यू करना है कि ये आफ्टर इफेक्ट नहीं है, आप रिकॉर्ड तो कर लो, हम एक्सीडेंट हम इंक्वायरी में देखेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ ये लिखा नहीं होना चाहिए था, ये गलत लिखा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हर चीज की होनी चाहिए एंड द इंक्वायरी कमेटी शुड डिसाइड कि क्या आफ्टर इफेक्ट था और क्या। लेकिन यहाँ ये माना गया है कि एक्सीडेंट द सुपरवाइजर्स मेकिंग दिस जॉइंट नोट विल कम टू ए कंक्लूजन दैट व्हाट when and where the accident took place and after effect should not be included। लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों को इसमें कोशिश करनी चाहिए कॉलम 26 में, और डिटेल्स ऑफ ऑल ब्रोकन पार्ट शुड बी इंक्लूडेड। कॉलम 27 जो है, कॉलम 27 नीड्स टू बी फिल्ड ओनली व्हेन देयर इज ए सस्पिशन अबाउट सैबोटाज। वो 27 है कि अगर सैबोटाज, ठीक है। Coming to the next part of the measurement, रेल और रेल फास्टनिंग्स के बारे में हम आपको बताएं। कई बार क्या होता है कि स्पेशली जब डी स्ट्रेसिंग वगैरह करते हैं उसके बाद रेल फास्टनिंग्स ठीक से नहीं लगाते हैं, और पेट्रोल क्लिप्स आर मिसिंग, और उसकी वजह से रेल
the rail can twist on one side and there may be a derailment. But if you don't count the number of fastenings, पैर से मार के देखिए, जस्ट हिट फ्रॉम योर, थोड़ा सा हिट करिए पैर से या किसी, आप देखेंगे अगर कोई पेट्रोल क्लिप लूज है, देन यू शुड नोट डाउन इन द कॉलम नंबर 22. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेल की कंडीशन ऑफ वियर, जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा व्हेन मेजरमेंट्स आर डन, तो आपके व्हील प्रोफाइल बहुत ही जुडिशियसली मेजर किया जाता है. उस व्हील प्रोफाइल में आप व्हील का रूट वियर, फ्लैंज वियर, एवरीथिंग इज मेजर्ड. तो अगर आपको व्हील प्रोफाइल मेजर कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग उसी का कॉम्प्लीमेंट्री तो व्हील प्रोफाइल भी है, उसका भी मेजरमेंट वैसे ही होता है. आप रेल प्रोफाइल का मेजरमेंट कराइए, रेल की वियर भी दिखिए, रेल का टॉप कितना वियर कर गया है, नीचे उसके भी गेजेज होते हैं, आज फॉर द गेजेज, और इसमें लिखा है अलग से मेजर करके लगवाइए. तो दिस कॉलम नंबर 19 इज द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कॉलम नंबर 19 जरूर मेजर कराइए. इसके पहले मैंने आपको कई चीजें बताई हैं, जैसे सॉइल का मेजर कर देखना चाहिए, बगल की लोकेशन, कोई तालाब तो नहीं है देखना चाहिए. इसी तरह कंडीशन ऑफ वियर ऑफ रेल. मैं आपको बताऊं एक बहुत मेजर डिवेलपमेंट था इलाहाबाद डिवीजन में, उसको मैंने यही वियर मेजरमेंट पे इंजीनियरिंग पे फिक्स हुआ था कि उनकी रेल वॉज बैडली वॉर्न आउट. दैट वाज द केस ऑफ टंग रेल. पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जितने डिवेलपमेंट होते हैं तो टंग रेल का मेजरमेंट टॉप से डिप्रेशन इट मस्ट बी नोटेड, और अधिकतर केस में टंग रेल खराब रहती है. मोस्ट ऑफ द केसेस टंग रेल इज वेरी वेरी बैड. मैं नहीं कहता कि टंग रेल खराब होने की वजह से डिवेलपमेंट विल हैपन ओनली टंग रेल इज नॉट ऑफ द प्रॉपर स्टैंडर्ड, but that will surely contribute to the mechanism of development. Development may happen due to some other reason also, but a badly worn trunk rail will surely contribute to the development. So condition of wear, it is very very essential, especially in case of curves and in case of points and crossing. Development on points and crossing. Condition of rail fastening, number per sleeper seat, this you should count and note down. रेल जॉइंट्स में एक क्रीप वाला जरूर नोट करना चाहिए. क्रीप डायरेक्शन, एक्सटेंशन ऑफ क्रीप, क्रीप एंकर्स, क्रीप मेजरमेंट पॉइंट्स होते हैं. अगली बार जब आप लोग रेल में जाइए, अगर आप लोग जमालपुर में आते हैं तो मैं आई वुड हैव टेकन यू टू द, मतलब आई वुड हैव आस्क्ड सम चीफ इंस्ट्रक्टर टू टेक यू टू द यार्ड एंड शो द क्रीप पॉइंट, जहां से क्रीप मेजर किया जाता है. आप लोग कभी देखिएगा क्रीप एंकर्स वहां पर है कि नहीं, क्रीप को मॉनिटर करने का और रिसेट करने का तरीका है कि नहीं. दैट शुड बी नोटेड डाउन. Then performer for track measurement part B in which the actual measurements are done. इसके देखिए, इसके सबसे पहले read down the notes. Point of mark should be marked station number 0 and station number serially plus ahead of the site of development and minus by the measurement. The cross level, देखिए इसमें ऐसा होता है, how many stations you have to measure. That is the main thing. Normally measurements will be taken at station 3 meter apart for a distance of 45 meter on either side. Normally 15 स्टेशन लेंगे, 15 stations on each side, each station is spaced at 3 meter. और जहां पर पॉइंट डेवलपमेंट हुआ है वहां पे एक एक स्लीपर पे स्टेशन मानेंगे और वहां मेजरमेंट करेंगे. अगर आपको जरा भी डाउट है, मेजर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि डेवलपमेंट क्यों हुआ है, देन इट विल बी मेजर्ड. पीछे की तरफ 100 मीटर्स तक मेजर करिए, दैट मीन्स अबाउट 30 to 35 स्टेशन, और आगे 15 स्टेशन ही मेजर करिए. ये आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए. अगर डिस्प्यूट है डेवलपमेंट में तो पीछे की तरफ 30 स्टेशन तक मेजर कराइएगा, नॉट ओनली 15 स्टेशन. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 15 स्टेशन में भी झगड़ा करता है, कहता है ये ट्रैक तो टूट गया है, अब इसमें क्या मेजर करना. तो ठीक है, जहां पे ट्रैक टूट गया है वहां आप छोड़ दीजिए, बट अगर ट्रैक ज्योमेट्री जगह भी बची है तो आप मेजर करिए और पीछे 100 मीटर तक चले जाइए. अगर ट्रैक टूट गया है, कई बार आप 100 मीटर तक जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी विच विल बी इंडिकेटिव ऑफ द प्रोबेबल प्रॉब्लम्स इन द ब्रोकन स्ट्रक्चर ऑल्सो. तो आप इसको मेजर करिए सही डिस्टेंस तक सबसे पहले. और ये जो लिखा है वेयर नेसेसरी measurements for column 3, 4, 5 should be taken in individual sleepers. यहां मैं आपको दिखाऊंगा ये column 3, 4, 5 क्या है.
कॉलम 3, 4, 5 है गेज क्रॉस लेवल एंड मार्क्स ऑन द स्लीपर्स ऑन द रेल टॉप। मैंने पहले भी आपको कहा था मार्क्स स्केच में भी निकल लिखे जाने हैं, मार्क्स आपके पार्ट ए में भी लिखे जाने हैं, लेकिन रेल टॉप पर जो मार्क्स है, रेल टॉप, रेल टॉप मतलब टॉप जहां रेल ट्रेवल किया है, बिटवीन पॉइंट ऑफ माउंट एंड पॉइंट ऑफ ड्रॉप व्हील विल ट्रेवल ऑन द रेल टॉप एंड दोज मार्क्स हैज टू बी रिकॉर्डेड इन number 5, column number 5. Column number 3, gauge slack or tight. ये आपको मेजर करना है इन व्हाट कंडीशन, लोडेड कंडीशन। हम अक्सर अक्सर गेज को मेजर करते हैं एम्प्टी कंडीशन, दैट इज ऑफ नो सिग्निफिकेंस। अगर गेज आप एम्प्टी कंडीशन में गेज और क्रॉस लेवल मेजर कर रहे हैं उससे कुछ नहीं पता चलता। एक रेल है उसके ऊपर अगर आप खाली मेजर कर दे रहे हैं, गेज कुछ भी आया उसके ऊपर एक आप 92 टन का वैगन ले जाके खड़ा कर दीजिए, तब जो गेज आएगा दैट विल बी डिफरेंट। और कई बार इसलिए लोडेड कंडीशन में हमेशा गेज मेजर कराइए, क्रॉस लेवल लोडेड कंडीशन में मेजर कराइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पीछे सारी चीजों को आप खत्म कर दीजिए, लेकिन जब आप लोडेड कंडीशन में मेजर कराने कहेंगे तो ट्रैफिक कहेगा कि हम लोग को नहीं दे सकते, हम कुछ नहीं दे सकते। आप यू राइट ए डिसेंट कि हमको लोडेड कंडीशन में नहीं मेजर करने दिया, यू गेट ए मेमो इशूड फ्रॉम योर कैरेज कंट्रोल टू ट्रैफिक कंट्रोल एंड गिव ए कंट्रोल मैसेज टू सीनियर डीएसओ कि हमको मेजरमेंट नहीं करने दिया जा रहा है, दिस इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड एंड दिस यू हैव टू डू ऑन डे 1, अदरवाइज ट्रैक विल बी रिपेयर्ड। और उसके बाद आप कोई मेजरमेंट करेंगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। So station wide, in the loaded condition, you have to measure the gauge and you have to measure the cross level. Subsidence of track वो तो आप मेजर कर लेंगे। Now come to Versine. Versine, what is Versine? Can somebody tell me what is Versine? Versine क्या होता है? Can somebody tell me? यस सर, कर्वेचर, स्ट्रेट से कर्वेचर का जितना दूरी हो रहा है सर, कॉर्ड खींचते हैं कर्वेचर पे, स्ट्रेट लाइन से जितना दूर होता है उसको बरसाइन बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वर्साइन क्यों मेजर किया जाता है? इसका इतिहास ये है कि अगर आप कर्व मेजर करने चलेंगे, कर्व मेजरमेंट का तो कोई तरीका है नहीं। कर्व इज ए डिडक्टेबल क्वांटिटी। कर्व को कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली कि कितने डिग्री का कर्व है। एक तरीका है कि आप रेडियस मेजर कर लें, रेडियस मेजर करके डिग्री ऑफ कर्व इज 1750 बाई आर, ऐसे फार्मूला होता है। तो रेडियस तो कर्व के बहुत बड़े होते हैं, उतना बड़ा आप कैसे मेजर करेंगे? तो कन्वीनियंट वे है कि फॉर ए वेरी मतलब कर्व जिनका 10-10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर रेडियस है, उन कर्व में आप एक कोई कॉर्ड खींचे और उस कॉर्ड की से डिस्टेंस कर्व की मेजर कर लें, कॉर्ड के लगभग मिडिल से, देन यू कैन बाय सिंपल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन, वो तो आप कहीं भी गूगल में टाइप करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ वर्साइन तो आपको मिल जाएगा। बाय सिंपल ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप डिग्री ऑफ कर्व निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ कर्व क्यों आपको चाहिए होती है? वाई मैकेनिकल इंजीनियर क्यों आप इंसिस्ट करेंगे डिग्री ऑफ कर्व में? मैंने आपको बताया था कि वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स का फार्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स डिपेंड करता है कि कितना mv² बाई आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्व एंड आर को कैसे निकालेंगे? 1750 बाई डिग्री ऑफ कर्व, जो भी डिग्री ऑफ कर्व। और डिग्री ऑफ कर्व को कैसे निकालेंगे? वर्साइन मेजर करके। तो वर्साइन मेजर करके आपको डिग्री ऑफ कर्व पता चलेगी, डिग्री ऑफ कर्व से रेडियस पता चलेगा और रेडियस से ये पता चलेगा कि कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कैंट दिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए कैंट दिया जाता है। अगर कैंट सही नहीं प्रोवाइडेड है, आई विल अगेन रिपीट इन इंग्लिश क्योंकि वो मतलब बीच बीच में आई एम गेटिंग स्विच्ड ओवर टू हिंदी। तो what happens when you measure the, why I was discussing why measurement of versine is required. If you measure the versine, you can find out the degree of curve. From degree of curve, you can find out the radius of curve. From radius of curve, you can find out the centrifugal force mv² by r. And to balance that centrifugal force, Kant is to be provided. Or Kant, if the correct Kant is not provided, then excessive
lateral force may excessive lateral force may exist at the time of negotiation of train, negotiation of curve, and it may lead to derailment, because Nadal formula says that y by q has to be in a limit where y is the horizontal force. So horizontal force may get increased if versine is not properly maintained. But versine is measured on different chord, 20 मीटर 10 मीटर पे किसी भी कॉर्ड पे मेजर कर लीजिए. एंटेनी कॉर्ड नॉर्मली स्टेशन टू स्टेशन मेजर किया जाता है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट ऑन दैट. इसमें लिखा है कि अगर 600 मीटर से नीचे का कर्व है, इफ कर्व इज लेस देन 600 मीटर, then you have to measure on 10 मीटर कॉर्ड, अदरवाइज 20 मीटर कॉर्ड. कॉर्ड का केवल इतना सा मतलब है कि पीडब्ल्यूआई का आदमी एक धागे जैसा लिए रहता है, कोई आप नॉर्मल रस्सी भी उठा लीजिए, टेक ए नॉर्मल रोप और नॉर्मल स्ट्रिंग ऑफ 20 मीटर लेंथ, अटैच इट एट 2 पॉइंट्स इन द ट्रैक, दे आर डिफाइंड स्टेशन, स्टेशन 1, स्टेशन 2, एंड देन मेजर द डिस्टेंस. कॉर्ड का इतना सा मतलब है. बट अगेन दिस वर्साइन हैज टू बी मेजर्ड इन द लोडेड कंडीशन, क्योंकि लोडेड कंडीशन में वर्साइन मे गेट चेंज. हालांकि इसमें मैंने प्रैक्टिकली देखा है इतना फर्क नहीं पड़ता वर्साइन में लोडेड कंडीशन में, अगर नहीं भी कहे, बट दैट गेज एंड क्रॉस लेवल उसको तो लोडेड कंडीशन में मेजर करना ही करना है. देन you have to note down the length of transition, degree of curve and specified super elevation. कई बार आप सुपर एलिवेशन मेजर करेंगे और वहां पर सुपर एलिवेशन एक स्पेसिफाइड होता है कि इतना होना चाहिए. हमेशा हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग सुपर एलिवेशन वगैरह मेजर करके आते हैं, स्पेसिफाइड नहीं नोट करके लाते. देन वी आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द ट्विस्ट. ट्विस्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन क्रॉस लेवल. तो हम लोग ट्विस्ट मेजर करते हैं और वो पीडब्ल्यूआई का पीवे मैनुअल जो होता है उसकी लिमिट से ज्यादा हुआ तो उस पर आर्ग्यूमेंट करते हैं. बट at every curve there is a specified super elevation written. अगर उस सुपर एलिवेशन से कम या ज्यादा सुपर एलिवेशन मिलता है, देन देयर आर चांसेज ऑफ अनबैलेंस्ड लेटरल फोर्स व्हिच मे कॉज डिवेलपमेंट. अगर आप इसलिए स्पेसिफाइड सुपर एलिवेशन जरूर नोट करके लाइए वहां से. नॉर्मली वी मिस दिस कॉलम नंबर 11. Super engineering supervisor may often take recourse to this item number 5. This performer need not to be filled when cause of derailment is obviously established as due to sabotage, obstruction of track, broken axle, spring fallen. Broken axle, obstruction of track, sabotage, that all I agree. लेकिन ये स्प्रिंग फॉलन वाले डू नॉट एग्री एट एनी पॉइंट. स्प्रिंग गिर गई, स्प्रिंग कई बार पीडब्ल्यूआई प्लेस करता है. Longitudinal level should be recorded for 300 meters on the rear and 100 meters in the front in case of history. ये भी record करेंगे. So with this I finish the engineering measurement. Now I come quickly to my case study. आप लोगों को इंजीनियरिंग मेजरमेंट में अगर कुछ पूछना हो आप अभी पूछ सकते हैं, या यू कैन रिटेन योर क्वेश्चंस फॉर टाइम व्हेन आई फिनिश दिस लेक्चर. अभी मैं जो केस स्टडी आपको पढ़ाऊंगा उसको थोड़ा सा जल्दी मुझे पढ़ाना पड़ेगा. This is a case study of 23 Kalka Mail. Accident occurred on 10th July 2011. Time was mid of the day, 12:20 hours. The accident took place near Fatehpur station. It was a Malwa station, very near to Fatehpur, just midway between Prayagraj and Kanpur. It was a straight track, no curve, 0.45 degrees, almost negligible. जो नॉर्मल कर्व लूप लाइन में होता है उतना था. ICF coaches there 10 to 15, 6 coaches got capsized heavily. 6 to नहीं उससे ज्यादा हुए थे. I will tell you later. Coming straight to the geometry of this is the sketch photograph of the site of development. From here you can see that this was the first engine, then first coach, second coach, line capsized, third coach
के ऊपर एथ कोच आ गया है. एथ कोच इज lying just above the third coach. Eighth coach, it has jumped from its position and lying. It is on the third coach. Third coach is totally badly deformed, and third coach में जाने बहुत गई थी. Many people have lost their lives in the third coach. Then this is the ninth coach. आप देख रहे हैं eighth, ninth and ninth coach has come out of the alignment. If you carefully see the geometry, first, second, third, fourth, fifth coach are lying in alignment, but capsized. They are in alignment in sequence. First, second, third, fourth, fifth coach are in sequence. Then sixth, seventh, eighth, ninth, 10th and 11th coach had jumped from the alignment. मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूंगा कि this clearly indicates that how the energy is absorbed when train is stopped suddenly. In this particular case, train got stopped within a span of about 100 meters. Emergency braking distance of any train मिनिमम मतलब आईसीएफ का तो 1000 से कम नहीं होता नहीं था. आईसीएफ की नॉर्मली इट वाज 1400 मीटर्स. आईसीएफ की ईबीडी ऑफ आईसीएफ कोचेज वेयर 1400 मीटर्स. इफ द ट्रेन व्हिच कैन स्टॉप even in emergency condition in 1400 meters, it made to stop in 90 meters, then how the energy will be absorbed? Energy can be absorbed, the total momentum of the train will get absorbed in deformation of the coaches flying out of the alignment. तो इस तरह से इसमें कोच फ्लाई किए थे. देखिए, सिक्स्थ कोच हैज स्टॉप जस्ट beside the engine. Seventh coach has also reached up to the engine. Eighth coach हवा में उड़ के ये उछल के it jumped off and fallen on the third coach. Ninth coach is totally out of the alignment. ये बगल में there is a private factory, लक्ष्मी कॉटन मिल, उसकी बाउंड्री वाल के पास जाके गिरा हुआ. 11th coach ऐसे गिरा हुआ है. 10th coach is upside down and 11th coach is lying on above of it. This line is the up main line and this is the down main line. Up, down main line both are obstructed. This is Malwa station, loop lines. Train was passing run through and one goods train, coal loaded train was lying in the up loop line. It got derailed at the points and crossing zone. Locomotive at 15 coaches got derailed, loco capsized. 71 passengers lost their lives in this accident. 91 more were grievously injured and 173 passengers sustained simple injuries. This was quite a इसने रेलवे की इमेज को बहुत ही. This is another photograph from another side. You can see the heavy crowd standing there. आपको मतलब you have to call civil police to control such crowd because this crowd creates unnecessary hindrance in rescue operations. You can see a ladder is there. और ये जो the coach, this AC3 tire lying on the top of the other coaches, persons are coming out by this ladder. ये कोच हवा में था तो इससे इनको रेस्क्यू किया गया था. I was senior DME of the division at that time, and I was in charge of restoration work in this case. This is the sixth coach which has flown off from its alignment and landed just beside the engine. You can see the deformation which took place on this coach. आगे के कोई आदमी बचा नहीं था इसमें. This is the rear trolley of the locomotive. The locomotive, it has detached from the locomotive and landed just beside the front trolley. Wheel set number 4. This trolley has also rotated 180 degree and the front wheel has worked out and it is lying somewhere here. 11th and 12th coach lying. You can see a heap, a pool of loose components, undergear components lying there, because all the coaches which has flown off took flight from this location
and trolleys, etc., got detached when wheel jumped off in the air, when coach jumped off in the air, and wheels and bogies of all the coaches, all the 6 to 7 coaches are lying there, forming a big heap. 11th coach is it. This is the fourth coach, fourth wheel of the locomotive. Locomotive is here. Trolley has also flown up, but wheel got detached and it is lying here. एक चीज और नोट करने की कि स्पीडोमीटर का अरेंजमेंट इसी व्हील में है. स्पीडोमीटर इसलिए जब ये व्हील डिटैच होगा देन स्पीडोमीटर विल स्टॉप वर्किंग. दिस द कोल्ड ट्रेन लाइन जस्ट बिसाइड एंड द एडजेसेंट लूप लाइन. Geometrical depiction of the site of accident. From here you can see that the WAP7 loco, and then 1, 2, 3, 4, 5 coaches we have in sequence, but 6, 7, 8, 9, 10, 11, that is 6 coaches. They took the aerial route and landed at different places. 12, 13, 14 also got derailed. 15, but here these were also lying in sequence. This is the main line, up main line, in which derailment took place in the point zone. Up loop line, down main line. Some coaches were infringing the down main line also, and down loop line was vacant. जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि एक्सीडेंट स्केच में you have to note down the fallen components. So here it was found that derailment took place in this area, and it was found that aluminium piece was lying behind the site of accident, and some hydraulic oil was also spilled off, and one dash part was lying just near the level crossing. Later on, it was found that aluminium piece, this was huge aluminium piece, was not from the coaching. क्योंकि पहले लग रहा था कि it may be CDTS tank, but it was not a CDTS tank. It was not of any coaching or any all the goods train which had passed just before the accident time. They were also examined. उसमें भी कोई ऐसा aluminium piece नहीं था, तो it was found to be an external piece. Moreover, there were no hitting mark on this aluminium piece. ये आपको नोट करना चाहिए, कोई भी अगर गिवा हुआ कंपोनेंट है तो उसमें हिटिंग मार्क तो नहीं है. तो हिटिंग मार्क नहीं थे, इसलिए पाया गया कि इसमें ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू एक्सीडेंट. अगर कोच से किसी से गिरा होता तो हिटिंग मार्क होते, then it would have led to the derailment, but it was not so. Similarly, this hydraulic oil was lying just adjacent to the line, whereas for a train passing at 110 kmph, if hydraulic oil is spilled off, it will be found at some distance. अगर स्पीड से ट्रेन जा रही है उससे निकलेगा तो दूर गिरेगा, इसलिए CCRS rejected this evidence also. The same logic holds for the dash part. Dash part is detached from the train, so थोड़ा दूर पे कहीं जाके गिरेगा, ये पास में गिरा हुआ था, इसलिए CCRS ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया. This is just to show you that when there is a disaster, then you can ask for the assistance from the army persons also. They will give you helicopters to act as an ambulance service. इस केस में हम लोगों का काफी विलेज साइड में डेवलपमेंट हुआ था, तो we asked for these 4 helicopters which were taking the passengers from the accident site and dropping them to AIIMS Delhi. Another evidence of this site, this was the rail fracture location. आपको जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि there is a joint of lead rail and tongue rail. Tongue rail and lead rail are welded at one place. वो यही प्लेस होती है. And this type of plate is called joggled plate. Joggled plate में बीच से ऐसे U टाइप का आप देख रहे हैं, ये बना होता है और इसी के अंदर वेल्ड होता है. अगर जॉगल्ड प्लेट सही तरीके से नहीं लगी है, देन दिस वेल्ड पे अननेसेसरी जोर पड़ेगा और टूट सकता है. एंड इफ दिस वेल्डिंग पॉइंट इज ब्रोकन, इसके टूटने से काफी डिवेलपमेंट होते हैं. दिस because this is in the point zone and this is the heavily stressed point. तो उसी जगह का एक फ्रैक्चर दिखाया गया है. You can see that the fracture took place in the 3 planes. One plane is this vertical plane, another plane is horizontal plane, और एक प्लेन इस तरफ का भी था. तो
रेल फ्रैक्चर टुक प्लेस ऑन 3 planes, यहाँ दोनों स्लीपर के नंबर लिख के मार्किंग करके इसकी फोटोग्राफ ली गई है. दिस इज द पॉइंट जोन यू मस्ट. This is the photograph of the broken wheel. You can see that the यहाँ पर जो बोल्ट था वो बोल्ट टीयर ऑफ हुआ है और इसने इतनी रेल को तोड़ दिया है. How the analysis is done in the case. You have to analyze all the causes of derailment. Here I have taken, I have summarized the CCRS report in a Ishikawa diagram, fishbone diagram, herringbone diagram, कुछ भी कहिए आप इसको, cause effect diagram. उस तरह का डायग्राम बना के, जैसा कि आजकल बोर्ड के निर्देश है कि ऐसे ही करना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज sabotage. Whether there was any sabotage, whether there was sudden conversion of nature, whether it was a case of bad enginemanship by driver, wrong operation by station staff, defect in signaling system, defect in rolling staff, defect in P-way. These are the probable 7 regions जिसमें आपको हमेशा एनालाइज करना है किसी भी डिवेलपमेंट को. और इन 7 regions के फिर सब regions हैं जो मैंने आगे दिखाए हुए हैं, जिनको कि आगे एनालाइज किया जाएगा. आप लोगों का अभी तक कोई सवाल इसमें? नो सर. नो सर. तो फर्स्ट थिंग सैबोटाज इसलिए रूल आउट किया गया बिकॉज इट वाज डे लाइट एंड विटनेस ने कहा कि यहाँ पे कोई आया नहीं था. देन सडन कन्वर्शन ऑफ नेचर. कभी कभी ऐसा बागमती एक्सप्रेस का एक्सीडेंट आपने सुना होगा जिसमें गाड़ी पूरी पूरी आज तक का रेलवे के इतिहास का इट इज द बिगेस्ट एक्सीडेंट, जिसमें पूरी एक ट्रेन ब्रिज से गिर के नदी में बह गई थी. तो वो दैट एक्सीडेंट वाज कंक्लूडेड टू बी ऑन द सडन कन्वर्शन ऑफ नेचर की. बहुत तेज कोई तूफान आया, उसमें नदी में गाड़ी गिर गई. तो ये सडन कन्वर्शन ऑफ नेचर में इस केस में डे लाइट था, 12 बजे का टाइम था और कोई आंधी तूफान नहीं चल रहा था. दिन इट वॉज ऑल्सो रूल्ड आउट. बैड इंजनमैनशिप बाय ड्राइवर, कि ड्राइवर ने सिग्नल सही टाइम पे देखा तो नहीं. वैसे गाड़ी रन थ्रू लगी हुई थी, लेकिन अब एक पॉसिबिलिटी होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वेदर द सिग्नल वाज सडनली टेकन ऑफ. So, whether the driver has seen signal in time, whether this was a case of sudden braking, whether speed. So, in this case, after the analysis of speedometer, it was found that braking was done only after the derailment. That means derailment के समय driver को पता ही नहीं चला. After derailment happened, then driver applied the brake. So, driver was not at fault. This was not a case of sudden braking. It was found that derailment took place at the speed of 109 kmph. This was concluded from the analysis of speedometer data as well as event recorder data. Event recorder data से क्या पता चलता है कि event recorder data will record an event of MR pressure drop or anything when the trolley gets detached. And स्पीडोमीटर से क्या पता चलता है? स्पीडोमीटर से स्पीड कभी रिड्यूस होना शुरू हुई पता चलती. उससे पता चला कि डिवेलपमेंट टुक प्लेस एट द स्पीड ऑफ 109 kmph. अभी मैं आपको स्पीडोमीटर की एनालिसिस बताऊंगा. देन रॉन्ग ऑपरेशन बाय स्टेशन स्टाफ. वेदर स्टेशन, ऐसा नहीं कि जब व्हेन ट्रेन वाज मूविंग स्टेशन मास्टर हैज सडनली ट्राइड टू चेंज द पॉइंट्स. वेदर सिग्नल वाज पुट बैक. क्या ऐसा नहीं कि सिग्नल वाज सडनली पुट बैक. This was analyzed and found it was not true. स्टेशन मास्टर ने पॉइंट मशीन नहीं ऑपरेट करी थी. वो डेटा लॉगर होता है एक रिकॉर्ड. All the signaling events are recorded by a software and it can be taken out. Record can be taken out. That data logger was analyzed and it was found that the station master had not done any bad operation. Then defect in signaling system. Whether interlocking has failed. आप लोगों में से कोई बता सकता है what is interlocking? इंटरलॉकिंग आप लोगों को नहीं मालूम है क्या किसी को? इंटरलॉकिंग बताइए. फीडबैक ऑप्शन शो नहीं हो रहा है सर. ये क्या है यार फीडबैक? शाश्वत आर यू देयर? ये somebody has given कुछ व्हाट्सएप पे हुआ है. आप ये बताइए
चलिए मैं बताता हूं आपको इंटरलॉकिंग क्या होती है। इंटरलॉकिंग का मतलब केवल यही है, जैसे कहते हैं, एक चीज हम बताएं, जैसे आपका अगर आप यूपीआई से किसी को पैसे पे करने जा रहे हैं, आप सब लोग जी गूगल पे, पेटीएम यूज करते होंगे। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, इफ यू डोंट हैव बैलेंस इन योर अकाउंट, देन यू कैन नॉट पे। You can pay only if there is a balance in your account. That means balance in your account and your payment procedure is interlocked. You cannot make a payment until and unless there is a balance in your account. Similarly, अब आप रिप्लेस कर दीजिए पेमेंट प्रोसीजर को सिग्नल से, और अकाउंट बैलेंस को रिप्लेस कर दीजिए पॉइंट की सेटिंग से। जब तक पॉइंट सेट नहीं होता तब तक सिग्नल नहीं लिया जा सकता। Signal cannot be given until and unless point is set and locked. There are two conditions. Point should be set and point should be locked. तभी आप सिग्नल हरा दे सकते हैं या लाल दे सकते हैं या कुछ भी। That is called interlocking in a plain, very plain words. अगर आप और आसानी से समझना चाहें तो एग्जाम्पल मैं और देता हूँ। जैसे आप सबके किसी के माँ बाप होंगे, आपके पिताजी अगर होंगे, तो आप अगर खुश हो जाते होंगे, if you are happy then your father will also be happy. He cannot become happy if you are sad. बाप बेटे की ऐसी इंटरलॉकिंग होती है, फादर एंड सन, मदर एंड सन, दैट इज द टाइप ऑफ इंटरलॉकिंग इन हैप्पीनेस, इन grief. They are interlocked. We are interlocked with our close ones in our happy moments, in our sad moments. Similarly, points and signals are interlocked. You cannot take a, पहले जब मैनुअल होता था तो बहुत से डेवलपमेंट होते थे कि सिग्नल को ग्रीन कर दिया बट पॉइंट नहीं सेट हुआ तो गाड़ी डिवेल हो जाएगी या दूसरी लाइन पे चली जाएगी। सो देन दिस पॉइंट एंड सिग्नलिंग सिस्टम की इंटरलॉकिंग फेल तो नहीं हुई थी, इसके फेल होने से डिवेलपमेंट हो सकता है। वेदर सिग्नल एस्पेक्ट चेंज ड्यूरिंग द ट्रेन पासिंग, ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट होता है एक पॉइंट का, वो आपको हमेशा कराना चाहिए। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। उसमें एक 5 mm का पीस डालते हैं एंड देन द पॉइंट इज ऑपरेटेड। अगर उस समय सिग्नल आ गया तो दैट मीन्स कि पॉइंट की इंटरलॉकिंग सही नहीं है, सही सेट नहीं है। दिस इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट। एसएनटी पीपल हैव टू डू दिस ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट ऑफ एवरी पॉइंट वंस इन 3 months। उनके रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं। ये भी चेक करना था कि वेदर पॉइंट मूव्ड अंडर द मूविंग ट्रेन। एक NWKR are the, these are the relays which gets operated whenever the point is moved. Then comes the defect in rolling stock, coach defect और local coach defect में मैं अभी आपसे चेक I have discussed कि this hydraulic oil, spilling of hydraulic oil, placement of one aluminum casing, coach was bent by middle, तो ये भी देखना था कोच मजबूत था कि नहीं। लोको डिफेक्ट, लोको की ट्रॉली डिटैच हो गई थी इसलिए लोको पे डाउट था। रेल पीवे डिफेक्ट में देयर वाज ए रेल फ्रैक्चर इन द पॉइंट जोन, दैट वाज द ऑब्वियस सस्पेक्ट कॉज। राइट साइड टंग रेल वाज बेंट but rail fracture, whether it was an after effect or it was a root cause, so it was to be analyzed. एक चीज और बताऊं कि when POM and POD both are found, then this is a gradual development, but in this case only POM was found, so this was not a gradual development, this was a sudden development. No point of drop was found, which indicates that wheel has made a clean jump and only mounted on the rail, and then by doing a clean jump it has dropped. POD जब भी केवल आपको पॉइंट ऑफ ड्रॉप मिलता है, जब भी आपको केवल पॉइंट ऑफ ड्रॉप मिलता है तो आप ये जान लीजिए कि यू मस्ट कि या तो गेज स्लैक हुआ है। when there is only point of drop, then there are chances of gauge getting slack, gauge widening, or some rail fracture, some sudden breakage has happened. So in this case also only POD was found. और एक रिले होता है 64 NWKR रिले। रिले का काम ये होता है कि रिले कन्वर्ट्स मैकेनिकल सिग्नल टू electronic signal. So this relay was dropped and picked up during the
derailment? Was it a case of two relay interlocking में भी help करते हैं? Not only it converts but it relay helps in interlocking. मतलब both signals are correct, then only it will give you a signal. डिस्क्रिपेंसी इन डेटा लॉग, ईस्ट और वेस्ट केबिन के डेटा लॉगर में डिस्क्रिपेंसी थी, जिससे लगता था कि स्टार्टर सिग्नल का वेट था, बट उनकी घड़ी जब मिलाई गई तो ये पाया गया कि उनकी घड़ी के टाइम में डिफरेंस था. देयर वाज ए डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट विच वाज नॉट करेक्ट. उनको वॉच हर एक उनको घड़ी मिलानी चाहिए थी, बट इट वॉज नॉट द, मतलब उससे ये पता चला कि डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू डेटा लॉगर्स वॉज नॉट द कॉज ऑफ डिवेलपमेंट. Again, pictures of oil fracture point. Oil fracture location was on the, agar if you take from the direction of movement, it was on the left rail. Then the next most important thing from mechanical engineer's point of view is analysis of speedometer data. Most of us analyze the speedometer data only to find out the speed. But from speedometer data, there is one more record, which is a record of distance travel. So find out the actual speed at the time of development. What you should do? आप जहां गाड़ी खड़ी हुई वहां की आप डिस्टेंस लिखिए एंड फिजिकली मेजर द डिस्टेंस. आपका जो पॉइंट ऑफ ड्रॉप या पॉइंट ऑफ माउंट मिला है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट ऑफ ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टॉपेज, और उतनी ही डिस्टेंस बैक यहाँ पर जाइए in the speedometer data and find out the speed. That will be the speed of the time of development. In this case, from the sketch of the development, यहाँ पर जो ये जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ से पॉइंट ऑफ ड्रॉप की दूरी, यहाँ से फ्रॉम दिस प्लेस वेयर द actual locomotive actually stopped. From this place, the point of drop was approximately 90 meters behind. So if from the speedometer we can calculate the distance of 90 meters and then we find the corresponding speed, that will be the actual speed at the time of development. So from here you can see that this data log here it shows 567, and then we go back to this 493. 493, 567 minus 493, it is approximately 74 meters. So between this 493 and 463, somewhere development took place. At this point, speed comes between 108 to 109. So we took speed at the time of development to be 109. And this total development happened from here speedometer data. It can be concluded that development took place at the time of this 12:33:25 seconds from the speedometer clock. And total development mechanism is of the 4 seconds. तो ये कहानी जो टोटल है डेवलपमेंट की है, स्पीडोमीटर डेटा से पता चला कि ये कहानी, दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट 4 seconds and 90 meters, in which unfortunately 71 passengers lost their life. ये 4 सेकंड और 90 मीटर की कहानी है. दिस वी कंक्लूडेड फ्रॉम द स्पीडोमीटर डेटा. Then this speedometer record was also plotted on the as a chart. और इसमें देखा गया कि ब्रेक्स वेयर ये चार्ट से स्पीड रिड्यूस्ड लाइक दिस. आई विल कम टू दिस लेटर ऑल्सो. From event recorder, we found out that diagnostic system recorded main Vijay Vaya low when speed was 92 kmph, but auto braking started when speed was 88 kmph. ये मेन विजय वाया लो कब रिकॉर्ड करेगा? जबकि ट्रॉली डिटैच होगी. तो ये लगता है कि ट्रॉली डिटैच हुई. लोकोमोटिव की ट्रॉली जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था, इट डिटैच एट अबाउट द स्पीड ऑफ 92 kmph. स्पीड ऑफ लोको रिड्यूस टू 88 kmph. ब्रेकिंग की इवेंट
इवेंट रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड थी। और जिस समय ब्रेकिंग ड्राइवर ने शुरू किया दैट टाइम स्पीड वाज 88 kmph। दैट मींस की स्पीड गॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम 109 टू 88 kmph विदाउट एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। वही चीज जो मैंने आपको बताया वो एनालाइज किया गया है कि किस समय इवेंट रिकॉर्डर। एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द, जैसे इस केस में आपने देखा अबाउट 15 कोचेज वेयर डिवेल। तो अगर हम 15 कोचेज के रूट वी आर एवरीथिंग वी स्टार्ट मेजरिंग, then there will be utter confusion in the inquiry. So to rule out this, you have to find out that what was the first vehicle to derail. उस जैसे इंजीनियरिंग अपना आफ्टर इफेक्ट निकालता है, आपको भी अपना आफ्टर इफेक्ट निकालना चाहिए। यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट दैट विच इज द फर्स्ट व्हीकल टू डिरेल, और उस फर्स्ट व्हीकल के रियर में जितने व्हीकल हैं, ऑल द व्हीकल्स इन रियर ऑफ द फर्स्ट व्हीकल टू डिरेल आर आफ्टर इफेक्ट। तो इस केस में भी आफ्टर एनालिसिस, एनालिसिस मैं बताऊंगा, आफ्टर एनालिसिस ये पाया गया कि इंजन वाज द लोकोमोटिव वाज द फर्स्ट व्हीकल टू डिरेल। सो मेजरमेंट ऑफ एनी कोचेज इन रियर ऑफ द लोकोमोटिव आर इनकॉन्सिक्वेंशियल। इसलिए कोचेज के मेजरमेंट का इसमें ज्यादा मतलब नहीं रहा। दो कोच मेजरमेंट वाज डन बिकॉज क्योंकि ये तुरंत नहीं स्टैब्लिश हो पाया क्या, इमीडिएटली इट वाज नॉट स्टैब्लिश दैट लोकोमोटिव वाज द फर्स्ट व्हीकल टू डिरेल, बट after it was established all the measurements of the coach parts observation were discarded. So आपको अपनी सारी एनर्जी साइट पे लगानी चाहिए फर्स्ट व्हीकल टू डिरेल निकालने में। फर्स्ट व्हीकल टू डिरेल इंजन क्यों था, इसके लिए दो तीन कारण थे। रियर ट्रॉली फर्स्ट इंजन की डिटैच हो गई थी, ये हमने देखा फोटोग्राफ में। एंड आई विटनेसेस ने बताया कि इंजन में हैवी वाइब्रेशन हो रहे थे प्रायर टू डिरेलमेंट। That in view of these observation, locomotive vehicle was the prime suspect, that it was the first vehicle which got derailed. एक और लॉजिक है कि वाइल द लोकोमोटिव वाज फर्स्ट व्हीकल टू डिरेल। देखिए आपको एक चीज बतलाऊं कि डिवेलमेंट ऑलवेज प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स रियर ऑफ द ट्रेन एंड नॉट अहेड। अगर कोई व्हीकल डिवेल हुआ तो उसके बाद वाले व्हीकल को डिवेल होंगे ज्यादा, उसके आगे वाला नहीं डिवेल होगा। एंड व्हीकल ahead to the first vehicle to derail can also get derailed, but it can get derailed in the cross pull. And engine is heavier, navally locomotive is heavier than the coaches, so a coach cannot derail a vehicle, because if it tries to derail a vehicle through cross pull, then coupling will get broken. And in this case, coupling was not broken. Coupling between the first coach and vehicle was not broken. That means that coach had not tried to get the locomotive derailed, but locomotive was derailed. That means locomotive was the first vehicle to derail. ये 4 सेकंड में हमने ग्राफिकली डिफेक्ट किया है कि 4 सेकंड में कितनी कितनी द फर्स्ट सेकंड speedometer chart से I found out this data from speedometer chart as mentioned in the CCRS report. In the first second, मतलब 4th second from the 0 second अगर लें तो train has traveled 30 meters, then 29 meters, then 30 meters and 20 meters. This has been. Engine manship of driver I have already discussed. Started when speed reduced to 80, so driver was not at fault. टाइम ज्यादा हो गया आप लोगों का। I will wrap up in 5 minutes. एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें एनालाइज की गई थी, विच कंसेप्ट आई वांट टू शो यू, कि देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि इफ द ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ say 110 kmph and it has to stop at 600 meters, then the energy destruction is approximately 110 square minus 0 square upon 20.
that comes to half mv square minus half mv square per distance. That comes about 20 units per meter. But in first second, energy destroyed was 13 units per meter in this case. In the next second, energy destroyed was 22 units per meter. In the third second, 30 units per meter. That means in second and third second, third, अगर ब्रेक लगता है तो ब्रेक केवल 20 यूनिट एनर्जी डिस्ट्रॉय कर पाता है, बट सेकेंड और थर्ड सेकेंड में उससे ज्यादा एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई थी. दैट मीन्स सम एक्सटर्नल फैक्टर वाज एट वर्क to stop the train. That external factor may be disturbance in train geometry or disturbance in track geometry. तो disturbance in train geometry और disturbance in track geometry को अगर एनालाइज किया जाए तो सीआरएस ने इसको केयरफुली एनालाइज करके और उसके ट्रैक पैरामीटर्स को एनालाइज करने के पास पाया कि इट वाज द डिस्टर्बेंस इन ट्रैक ज्योमेट्री. अगर अब मेरे पास और समय होता तो मैं आपको ये पूरा डिटेल में बताता, लेकिन मैं आपको अभी केवल इतना बता रहा हूं कि अगर इसकी मैकेनिज्म को पूरा एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि दिस वाज ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन ट्रैक ज्योमेट्री. और ट्रैक ज्योमेट्री को जब फर्दर एनालाइज किया गया तो ये पाया गया कि ये जो वेल फ्रैक्चर था, this whale fracture was in the point zone and this whale fracture has become the root cause of the derailment. अब ये whale fracture हुआ क्यों, ये भी आपको बताना चाहता हूँ. whale fracture normally there is a welding आप लोग भी करवाते हैं. welding में risers रह जाते हैं. there are small projections on the welding surface. if those projections are not clean, then this joggle plate will not sit properly, it will not take surface contact, rather it will take point contact, and at the point contact the stress will be there and that can lead to fatigue failure. जो इसका जो फोटोग्राफ लिया गया उसमें फैटिक फेल्योर पाए गए, तो उन फैटिक फेल्योर के कारण वेल फ्रैक्चर हुआ. And this whale fracture, then the engineering department argued if fish plate is there, then there cannot be whale fracture. Yes, they were too. अगर fish plate, then there cannot, whale fracture cannot lead to the derailment. If fish plate is tightly अगर बंधी हुई है तो नहीं होगा. सही बात कह रहे थे, लेकिन इस केस में वेल का टॉप सरफेस ही टूट गया था. टॉप सरफेस टूटने के कारण ज्योमेट्री बिगड़ जाती है और फिर डिवेलपमेंट होगा. काफी चीजें मैं आपकी आज डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा कम हो गया. अल्टीमेटली दिस डिवेलपमेंट वाज कंक्लूडेड. cause of the derailment was due to rail breakage across the belt between left tongue whale and lead whale. With this, I conclude my this case study of Kalka accident. If you have any question, you may please ask. Participants, do you have any questions, please? Please ask मेरा your एक question. क्वेश्चन है सर. हाँ बोलिए. मेरा कंफ्यूजन है सर. अगर कभी कभार दिखा जाता है डिग्री ऑफ कर्वेचर में, वो जो बोर्ड रहता है बोर्ड में दिखाई नहीं देता ठीक से, तो हम लोग भरसाइन से कैसे निकाल सकते हैं उसको? कभी कभार पीडब्ल्यू लोग भी गलत बताते हैं उन लोग को बचने के लिए. सुनिए मेरा एक बात सुनिए. These are two different things. वर्साइन से you can always find the वर्साइन नाप के वर्साइन से वो टीवी मैनुअल में फार्मूला दिया हुआ है, वो उससे निकल आएगा वर्साइन से. यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम वर्साइन कितना वर्साइन आया तो कितना डिग्री आपका एट सर्टेन कॉर्ड. कोई एक पर्टिकुलर कॉर्ड होती है, इफ यू आर मेजरिंग इन मीटर, हमारे ख्याल में 10 मीटर या 20 मीटर में, मैं आपको बता दूंगा, उस पर वर्साइन जितना नापेंगे उतना ही डिग्री आपका आएगा फॉर्मूला से. इफ यू कैन कैलकुलेट, मैं आपको अलग से ये बता दूंगा एंड आई विल शेयर इन द ग्रुप आल्सो. वर्साइन से डायरेक्टली डिग्री, लेकिन वो कर्व आता है एक्चुअल कर्व जो आपको मिला, और जो लिखा होता है अगर वो सही नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आपको उनके डॉक्यूमेंट मांगने पड़ेंगे, बिकॉज दैट इज द स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ कर्व, और उन दोनों को कंपेयर करना होगा. अगर एक्चुअल कर्व उतना नहीं है जितना स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ कर्व था, तो दैट कैन लीड टू अनबैलेंस फोर्सेस एंड दैट कैन लीड टू डिवेलपमेंट. तो इसलिए वो जो छपा हुआ है वो तो नोट करना ही है, जो आप मेजर करेंगे वो तो एक्चुअल है.
यस सर। जैसे हम लोगों का क्या होता है, जैसे हम लोग मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं, तो एक चीज तो कंडक्ट रूल में लिखी हुई है कि वी विल मेंटेन इंटीग्रिटी और ये और वो, और हम लोग कभी अपनी सैलरी का 2 गुना से ज्यादा अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे या किसी में, तो हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। वो कानून वहां लिखा हुआ है, लेकिन आप एक्चुअल क्या करते हैं ये अलग है। उन दोनों में डेविएशन ही हम लोगों के प्रति चार्जशीट का कारण बनता है। इसी तरह से समझिए कि जो उधर लिखा हुआ है बोर्ड में, दैट इज द कंडक्ट रूल, और जो आप एक्चुअल नापते हैं दैट इज द एक्चुअल बिहेवियर। फाइंडिंग डिग्री ऑफ कर्व फ्रॉम वर्साइन, वो मैं आपको एक स्लाइड थी, मैं शेयर कर दूंगा आपको, वो आप निकाल लीजिएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। बट लेकिन उस पर मत टिकिए कभी भी। वो यू शुड आल्सो आस्क इंजीनियरिंग पर्सन कि आपका यहाँ स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ कर्व क्या है। अगर वहां नहीं है तो उसके ट्रैक मेंटेनेंस सिस्टम टीएमएस खुलवा के देखिए, उसमें लिखा होगा। नाउ दे आर रिकॉर्डिंग ऑल द इंस्पेक्शन। पहले इनकी बुक्स होती थी जो मिल जाती थी, नाउ दे आर रिकॉर्डिंग ऑल द इंस्पेक्शन इन टीएमएस। और टीएमएस कहिए हमको खोल के दिखाओ डिग्री ऑफ कर्व क्या है, तो यहाँ क्यों नहीं लिखा? दैट इज ऑल्सो ए डिस्क्रिपेंसी इफ दे डोंट राइट, अगर वहां क्लियरली नहीं दिख रहा है। यस और सर। ट्रांजिशन लेंथ भी देखना चाहिए, ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट हुआ ये भी देखना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंजीनियरिंग को ट्रांजिशन लेंथ में होती है। दे आर नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर ट्रांजिशन। आप उनको अगर वहां पकड़ लेंगे तो वो आपसे बैकफुट पर रहेंगे। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? Participants, please ask your questions. अगर इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन राइट नाउ, यू हैव एनी क्वेश्चन लेटर, तो आप हमको ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, या आप मेल कर सकते हैं, या एनी टाइम ड्यूरिंग कंडक्टिंग एन इंक्वायरी यू फेस ए प्रॉब्लम, तो आप लोग कभी बताइएगा अपने कोच डायरेक्टर्स आपको बताइए, एंड गिव योर प्रॉब्लम टू मी, गिव मी सम टाइम, आई विल रिस्पॉन्ड बैक। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा एम ये है कि हमारे जितने मैकेनिकल सुपरवाइजर्स हैं, दे शुड बी वेरी they should be competent enough, and they should be equipped with all the knowledge of the of conducting an accident inquiry, and do find some time to come to AME in, इस बार अनफॉर्चुनेटली आप लोग नहीं आ पाए, इन ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड पे दिस नॉलेज इम्पार्टेड टू यू कैन बी एटलीस्ट मतलब 10 to 20x, 10 से 20 गुना नॉलेज आपको इससे इम्पार्ट की जाती है, क्योंकि सामने मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा दूंगा, वर्साइन मेजरमेंट करके, वर्साइन से डिग्री कैसे निकाली जाती है, आपको ज्योमेट्री पूरा 10th की ज्योमेट्री से वी विल कैलकुलेट। इट इज ए सिंपल प्रॉब्लम, 10th की क्लास 10th की ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है, वर्साइन से कैलकुलेटिंग डिग्री फ्रॉम वर्साइन। यस, इफ यू there are no more questions, we can close the session. Sir, I think that there are no more questions at the moment, but I would highly recommend all the officers and the young supervisors who have a lot of time before them to think of their questions and to ask and to put their questions in the chat, in the group, in the WhatsApp group, or to ask me directly. And sir, I will share those questions with you, and their answers I will share back on the chat. ओके शाश्वत, थैंक यू। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, कि अगर आपके दिमाग में अभी सवाल नहीं आया है, इवन ड्यूरिंग कंडक्टिंग एन इंक्वायरी और प्रिपेयरिंग ए जॉइंट नोट, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग, then they can just send a mail to me and we will try to help them out. Okay, thank you. Thank Sir, you. thank you very much, sir. Sir, the valedictory session of the course is scheduled at 12:30 p.m. in half an hour with Director Sir and SP Trainset Sir. Participants, I request all of you to remain logged in, to remain in the session. Do not leave the session. Please, everyone, please take a break of half an hour or so, and then we can join again for the valedictory session at 12:30. Okay. In the meantime, please